ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਬਰ ਤਖਤ ਚਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੂਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿ ਸਾ ਮਤ ਦਿਓ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਤ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਹਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਮੋਰ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਸਵਈਏ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਵਈਏ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਦੇਵਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਈਆ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀਤ ਫੇਰੇ ਸਭ ਦੇਸ ਦੇਸਾਨ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਿੰਗਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਆ ਕਿ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਮਰਦੰਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ ਗਿਆ ਡੀਜੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਢੋਲ ਦੇ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਨੱਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਡੀਜੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲ ਤੇ ਮਰਦੰਗ ਤੇ ਨਿਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ,
जित भी आ ते पिछले सवैये के मुताबिक उन्हां को ताकत भी आ। वो ताकत कैसी? गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत है हई राज हजारे। इथे बस नहीं, बहुत सोहने सोहने हाथियां दा समूह जिहड़े चंगियाड़ा मारदे ने, गरजदे ने बड़े उच्ची उच्ची, अते हजारां ही तरह दे उन्हां को श्रेष्ठ घोड़े, घोड़ियां दी प्रदर्शनी कि चंगियां नस्लां दे घोड़े ने, महंगे घोड़े ने। और जिवें पिछले सवैये च दस्सिया सी, घोड़े भी वो हिरन दी चाल तो भी ज्यादा जिहड़े हवा नूं भी मात पाउंदे ने, ऐसे सुंदर घोड़े हिणकदे ने, गूंजदे ने ते बड़ा नाच गान करदे ने। वो भी एक अपनी अमीरी दा, अपनी जित दा एक प्रदर्शन है। अगे सतगुरु जी बख्शिश कर लगे, भूत भविख भगवान के भूपत कौन गाने नहीं जात विचारे। तिना समयां दी गल कीती है। अजे महत्व वाले यानी एडे वड्डे जिहड़े कि भूत भविख ते वर्तमान दे तिन्ना कालां दे विच जितने भी राजे होए ने और जिन्हां नूं विचारिया नहीं जा सकदा, यानी कि गिणिया नहीं जा सकदा, यानी कि अज तो पहला भी, अज भी, आने वाले समय च भी बहुत बहुत वड्डे राजे महाराजे जिहड़े होए ने, उन्हां सारियां दी कोई गिणती मिणती नहीं गी। एहो जे कहो जे भला जिहड़ा पिछे बयान किया, जिन्हां को तरह तरह के घोड़े ने, हाथी ने, देश दसांतरां ते अपना कब्जा किया होया ते अपने आप च वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते ने। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी तीसरे सवैये दे अखीर दे विच जो अपना बयान देंदे ने, सेध देंदे ने, कहण लगे, सिरपत सिर भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। जेकर इतना कुछ होने दे बावजूद भी वो जिहड़ा सिरीपत सिरी भगवान है, यानी कि परमात्मा, आम करके सटीकां दे विच तुसीं देखोगे ना, इहदे अर्थ माया दा पति लिखिया है, पर असल च परमात्मा सटीक दे हिसाब नाल चलोगे ना तुसीं, उत्थे तुहानूं भुलेखा लगेगा। पर सच जाने वो जिहड़ा परमात्मा सारियां दा मालक आ, सारियां दा स्वामी आ, ओदे सिमरन तो बिना, ओदी याद तो बिना सारे दे सारे कोई भी आ भावें। इत्थे हुण बेनती, जरूरी नहीं कि राजे ही होण, जिन्हां को इन्ना धन दौलत शक्ति होवे, बेशक भावें कोई गरीब भी होवे, जिन्हों हो सकदा कि इस जगत दे विच एक वक्त की रोटी भी नसीब ना हुंदी होवे, लेकिन जे नाम नहीं जपिया वो भी जमराज की कचहरी च पेश होणगे। मुक्तसर बेनती, वो भी लोग भावें कोई भी आ, जिन्हां ने परमात्मा भुलाया, परमात्मा दा सिमरन नहीं किया, सारे दे सारे जमा दी पुरी च जाणगे। गुरु कृपा करते ने कि हर बिसरत सदा खुआरी, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग अत्याद। ये गुरबाणी प्रमाण सिद्ध करते ने कि सोदत सोदत सोद विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। तो सो बेनती आ कि परमात्मा दा सिमरन बड़ा जरूरी आ, ओदी याद बड़ी जरूरी है। तो मैं फिर बेनती करा, जितना भी नितनेम आ जां सतगुर दी बाणी है, इस सिमरन दी सानू हदायत देंदी आ। जिवें कल भी जिक्र किया सी, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रथाए 4 गल्लां दा, गल सच दी, सच तो टुटियां दी, सच नाल जुड़ियां दी, सच दे नाल जुड़न दे वसीले दी, कि असीं किवें जुड़ना, ते सानू हैल्प देंदी आ। सरमोर सारा जिहड़ा है ना वो नितनेम आ। ते गुरमुख प्यारे ते इत्थों तक भी कहंदे ने, जिवें साडा देश किसानी दा आ, ते गुरमुखो एक किसान खेत नूं वाहुंदा भी आ, पानी भी देंदा आ, राखी भी करदा, वाड़ भी करदा, खाद भी पाउंदा, सारा कुछ है, पर उहदे विच ना बीज नहीं पाउंदा।
हुण तुसीं जरा ध्यान दिओ, सारा कुछ कीता, मेहनत कीती, पर उहदे च बीज नहीं पाया ते की किसान नूं कोई लाभ होवेगा? जे बीजिया ही कुछ नहीं ते उगेगा की? सच जाने ये नितनेम, भावें वो सहज पाठ है, भावें वो नितनेम है, सेवा आ, सारा कुछ करो मुबारक है, लेकिन सिमरन नहीं कीता तो सारा व्यर्थ है। सिमरन अति लाजमी है। सिमरन दे नाल नाल ये फिर जरूरी बन जाता, जिवें बीज बीजता नाम बीज, फिर सेवा करके अपने मन नूं निर्मल करना। फिर ये नितनेम दे विच हदायतां जिहड़ियां दित्तियां, भाई प्यारे आ तू कर ते आ ना कर, यानी कि फिर सुचेत रहना, फिर सुचेत ते सावधान रहना। अमृत वचन इहो ही कि जेड़े भाई परमात्मा नूं भुल के परमात्मा दा सिमरन नहीं करदे, वो सारे दे सारे, कोई भी होवे, भावें किसी को शक्ति है या कोई गरीब है अमीर है, वो सारे जमा दी पूरी च ही जाणगे, जमा दे वस ही पैणगे। ये ते दर्शाया गया संसारी पक्षों कि भाई इन्ना धन दौलत होवे ते इन्ना कुछ होवे ते प्यारिया ये तेरे साथ नहीं हो जाना, इन्हें तेरा उस दरगाह दे विच साथ नहीं देना, साथ देना है ते नाम सिमरन ने देना है। फिर इत्थे बस नहीं, संसार के लोगों ने खास करके हिंदुस्तान के अंदर ऐसिया मनोता नेम घड़े ने, उन्होंने मुताबिक असी तुर पे, चलती के पीछे चलना लोगन की भेड़ चाल। तो मैं निक्की जी बेनती कर देवां, जिहड़ी सिक्खी आ इहदे विच सिद्धांत, असूल, निजम, मर्यादा दृढ़ करवाई जाती है। जे असी उस सिद्धांत के मुताबिक नहीं गए, माफ करना भावें जो मर्जी कर लो, वो मालक की असीस सानू नहीं मिलनी। ते जेड़े गुरु का गुरपुरब मना रहे जो ना बाणी पढ़ के, उस गुरु के वाक ने, जिथे खंडे बाटे का अमृत तैयार करके सतगुरां ने बख्शिश की 1699 की विसाखी ते उत्थे सिखां नूं खालसे का खिताब दिता, ये मान दिता। हालांकि खालसे की व्याख्या लंबेरी आ, आपां संखेप जी गल कह दईए, मान दिता। ते उत्थे ये भी गल कही सी, खालसा जी एक गल चेते रखियो, मान भी बड़ा सी कि खालसा मेरा सज्जन सूरा, खालसा मेरा सतगुर पूरा। जिहड़ा खालसा है ना, वो मेरा सतगुरु आ, लेकिन खालसा जी ध्यान रखना, जब लग खालसा रहे नियारा, तब लग तेज द्यूं मैं सारा, जब ए गहे विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। ते जिहड़ा चौथे सवैये दा पहला पदा आ रहा, तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेखे। तीरथ नहाउणा, दान करना, ते इस तरह तीर्थ दा खंडन तां गुरमुखों गुरु नानक साहब ने पहली पौड़ी जपजी साहब की पहले पदे जी करता। पढ़ते सी रोज आ, पर वो गल आ कि तोतियां वाली कई बार आप जी नूं साखी सुनाई भी आ कि तोते वो ना जायो, वो साडे वर्गे तोते ये गा भी रहे ने ते नाले घर भी रहे ने। असी नितनेम भी पढ़द्या याद कर लिया, फिर भी असी तीर्थां दा रटन नहीं छड्डिया। तीर्थां की बड़ी बड़ी महानता, जे तीर्थ की नहीं महानता तो तीर्थ जाण वाले की सेवा करके की पल्ले पालोगे? सेवा के नां ते सेवा करनी है। धन गुरु नानक साहब ने तो कहा, किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। असी रजद्या पुजद्या नूं ते खवा देंदे, ते कदे गरीब दे बच्चे की पढ़ाई या गरीब दे किसी इलाज कराउणा ना, उत्थे 1 रुपया दे के राजी नहीं। फिर उही है ना, चूड़े वाले की बांह चूड़े वाला फड़दा, गरीब की बांह गरीब फड़दे। अज गरीबां नूं तो बद्दा खवा रहे आ चंगे चंगे स्वादले पदार्थ। माफ करना, मैं तो इत्थे ये भी तक रहा, अपने जथेबंदियां नूं ते खवाउणगे ते स्टाफ नूं पुछणगे ही नहीं कि भाई साहब जी आण के किते तुसीं भी छक लो। बल्कि पाबंदी भी लाई जाती है, ये साडे रिश्तेदारां दा प्रोग्राम आ ते स्टाफ ना आवे। मैं बहुत कुछ तकिया ते नोट कीतियां गल्लां, ते फिर ओही गल हैगी ना
अन्ना वंडे सेरनियां मुड़ घुड़ अपनियां नूं ही, अपनियां तक ही सीमित है। गुरु रहमत करे इस चीज नूं समझ गए। ते गुरबाणी च भी इस गल का जिक्र किया कि परमेश्वर नूं खुश करना, परमेश्वर नूं वस करना। ते सतगुरु जी ने जिथे जपजी साहब च जिक्र किया, होर बाणियों च भी जिक्र किया, ते एक खास करके इस पौड़ी की पूरी की व्याख्या रामकली की वार अंदर भी सिद्ध हुंदी है कि जिहदे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ऐस बख्शिश करते ने कि ना तू आवे वस वेद पढ़ावण, ना तू आवे वस बहुत कढ़ावण, ना तू आवे वस धरती धाइए, ना तू आवे वस बहुता दान दे। ये सारी पौड़ी नूं पढ़िए। अखीर दे विच ओह गल कही, हे दाता वास्तविक सारा कुछ तेरे वस च है और परमेश्वर दे वस च है, लेकिन परमेश्वर भी किसी दे वस च है। सब को तेरे वस अगम अगोचरा, तू भगतां के वस भगतां तान तेरा। हुण भगत शब्द की व्याख्या बड़ी लंबेरी है, पर मैं इत्थे करनी नहीं है जी, क्योंकि समा चाहिए। आपां टारगेट इस सवैये भी पूरे करने हैं, ते थोड़ी जी मजबूरी आप जी ने थोड़ा जा अबेसलापन मैं जरूर कहांगा, पहला नहीं दसिया ताकि मैं परसों छुट्टी भी जाना, ते कल दा देनी तुहाडे कोले। ते गुरु किरपा करे आपां इस बाणी नूं भी संपूर्ण करिए अज ते कल दे विच। गुरु रहमत करे कि तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेखे, अनेक अनेक तरह दे ये विशेष कर्म कीते। इत्थे वेद पुराण कतेब पुराण जमीन जमान सबान ते पेखे। वेद वो वेद जेड़े 4 वेद ने, पुराण 18 पुराण ने, इस्लाम धर्म ते ईसाई धर्म दियां कतेबां ते कुरान आद इत्थे बस नहीं, इंज कह लो तुसीं कि सारी धरती दे धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़िया घोखिया विचारिया, पर विचार तो उन्हां सारियां दी इक्को आ। ते जिते कि सेध लै लैंदे एक तो गुरु ग्रंथ साहब तो ते बहुत सोहनी गल सी। और गुरबाणी ने कहा भी है कि सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। ते इत्थे भी कहते बड़े वेदां नूं कतेबां नूं कुरानां नूं तमाम जहान दे धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़िया घोखिया, इत्थे बस नहीं। अगे सतगुरु कहने लगे पौन आहार जति जत धार, सबसे विचार हजार हजारे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करने लगे हजार के देखे। सतगुरु बख्शिश करने लगे भाई कोई ऐसे भी ने कि जेड़े केवल पौन आहारी ने, जेड़े अपने आप नूं उच्चा सुच्चा जीवन दसन वाले, जिन्होंने आपां जत सत धारी कहने। ते जत दा असल अर्थ है उच्चा जीवन, करैक्टर। हुण उच्चा जीवन ये पूरे ज्ञान इंद्रिय, साडे ज्ञान इंद्रियां ते साडा काबू होवे। ते वो सारे जेड़े पौन आहारी ने, जति सती ने, ते सारे जेड़े अपने आप च ये बनते ने हजारां दी गिणती दे विच, सारे दे सारे मैं वेखे ने। पर सच इत्थे फिर आण के मुकदा, श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै। श्री भगवान परमात्मा रब जी जिन्हों तुसी वाहिगुरु कहंदे जो, ओदे भजन तो बिना भावें कोई भूपत है तो भावें कोई गरीब है, बेनती इन्नी है कोई भी होवे, ये नहीं कि आप गरीब हैं तो साड़ी की पाया असी माफ हो जाएगा। ओदी कचहरी च सच वरतदा, उत्थे सचो ही सच निबड़े। जिस काम वास्ते सानू भेजिया ना इत्थे वो काम कीता ते ठीक है, नहीं कीता ते भाई तेनू सजा बरकरार है। सतगुर कृपा करते हैं। वो सारे दे सारे भावें को राजा आ, भावें को गरीब है, भावें को अमीर है, जे सतगुर दी बंदगी नहीं की, इबादत नहीं की, वो लोग एक रति बिन
यानी कि एक ना रत्ते नहीं गए, एक दे प्यार च नहीं पए, परमात्मा का सिमरन नहीं किया, एक ना लेखे उन्हां चों कोई भी उहदे लेखे च नहीं, यानी प्रवानगी च नहीं गा, उत्थे प्रवान नहीं होणगे उस दरगाह ते सतगुर सच्चे पातशाह इसे ढंग दे नाल अगला सवैया बख्शिश करते ने पंजवां, शुद्ध शिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे। शुद्ध शिपाह दुरंत दुबाह, चंगी सिक्ख्या वाले सिपाही यानी कि सूरबीर, चंगे योधे, बहुत जिन्हां को शक्ति है, इत्थे बस नहीं, उन्हां दा अंत नहीं गा। ते फिर उन्होंने कवच पाए ने, जिन्हों आप बुलट प्रूफ अजकल जाकट कह देने, अपने बचाव वास्ते, ते कवच पा के भी साज के भी वैरी दल नूं जितण वाले ने, वैरी दल नूं दलन वाले ने, अड्डे वड्डे सूरमे योधे, ते वो सारे दे सारे भावें किस तरह दे ने, भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे। उन्हां सूरमियां दी वडियाई कीती है कि जेड़े बड़े भारी गुमान दे विच कि असी ये जित लेना है, उन्हां कोई नहीं आत्म विश्वास है, भरोसा है, गुमान है, मान है, वो कहन लगे एक टाइम ये हो सकदा कि पर्वत, पर्वत कहते पहाड़, पहाड़ किड्डा वड्डा हुंदा और पहाड़ अडेग रहिंदा, वो हिलदा तो नहीं भाई, लेकिन हो सकदा पहाड़ भी खंभ ला के उड़ जे, किते अपने स्थान तो हिल जवे। पर वो जेड़े सूरमे है ना सिपाही योधे, वो नहीं हिलदे, वो अडेगिया, वो अड़न वाले ने, वो हिलजिल नहीं करदे। इस तरह तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे। तोर अरीर वैरी दल नूं तोड़न वाले, यानी वैरी दल ते जित प्राप्त करने वाले, वैरी दल नूं मार देण वाले, और नाल दे नाल उन्हां दे विच कुछ बागी भी हुंदे अपणिआं चों भी, और ये बागी शुरू तो तुरे आ रहे ने, गद्दार लोग, स्वार्थी लोग, जेड़े बागी ने उन्हां नूं भी मरोड़न वाले, जेड़ा साथ नहीं देंदे। फिर इत्थे बस नहीं, उन्हां को मस्त हाथी ने, ते मस्ती दे विच जेड़े मल सुट्टण वाले, ऐसा उन्हां को ताकत, उन्हां को जुरत है। अखीर दे विच पंजवें सवैये च सिरपत सिर भगवान कृपा बिन त्याग जहान निधान चलेंगे। फिर इत्थे गल बार बार इको ही दोहराई जा रही है, उस वाहिगुरु परमात्मा स्वामी दी कृपा तो बिना। इसे करके सच है, परमेश्वर दा सिमरन, परमेश्वर दा गुण गाउणा अपने आप नहीं हो सकता, ये भी सच है। और गुरु नानक के घर एको चीज सिखाई जाती जो जिहड़ी सरमोर आ बार बार दोहराई जाती है। इथों की प्राप्त हुंदा प्यारिओ, इथों प्राप्त हुंदा गुर प्रसाद, गुरु दी किरपा। इत्थे मैं नहीं कहना, इत्थे होण आं दी चीज नहीं गई, बल्कि जदों किते अपने आप नूं छोटा विखाया ना, उदों क्या अपने आप नूं मैं, पर नहीं, मैं तेरे अगे कुछ भी नहीं गा सच्चे पातशाह। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने यह बख्शिश की, असल विच परमात्मा वाहिगुरु दे बलवान किरपा तो बिना भावें जिन्ने मर्जी वड्डे योधे बलवान सूरमे होण, अंत नूं तां इह संसार छड्ड के जाना ही जाना है, उहदी किरपा तो बिना। इसे करके आ बेनती करी दी है, भावें तुहाडे च कोई भी पाठ करे जां सुने सारे रल के, भावें दास हुण कर रहा तुसीं सुन रहे जो, ये दोवां चीज़ां दे विच सतगुर दी किरपा जरूरी है। कि सच्चे पातशाह तुसीं अपनी मत दो, साडी मत थोड़ी है, कि तू समरथ वड्डा मेरी मत थोड़ी दा। जदों ये करवांगे ना, ये एक निम्रता दा सूचक है, नीवापन।
ते तेरी कृपा होनी है। ते अमृत बाणी दे विच वाक भी आए ने कि गुण निधान गुण तिन्ही गाए जाको कृपा धारी। ओदी कृपा जिस जीव ते हो गई आ, असी दास भी कहंदा प्रेरणा देंदा कि भाई आओ, पर सच जाने और रिजल्ट ये निकलदा पढ़दे पढ़ाउंदे विचारदे अंदरों सतगुरु जी मंगदे दे भाई मैं अपने आप से जिक्र करा वो चन्न जी इन्हां दा भी कसूर नहीं, असल च इन्हां ते कृपा ही नहीं गी जिहड़े गुरु घर टिकदे नहीं गे, क्योंकि ये सच है। बिना कृपा तो इस दर ते आउणा भी बड़ा मुश्किल हो जाता, आउंदियां आउंदियां राह च भी मुड़ जाईदा, और यह होया भी होना तुहाडे नाल किसे नाल। गुरु कृपा करे। सिरपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निधान, चलेंगे इथों छड़ के संसार नूं जाना ही जाना है। अगे फिर 6वां सवैया आउंदा ते सतगुरु जी बख्शिश करते हैं। वीर अपार बड़े बरियार अविचार सार की धार बसैया। बड़ी अपार शक्ति वीर योधे, अपार शक्ति वाले सूरवीर अते बहुत ही बलवान, जिन्हां दी विचार करनी भी बड़ी औखी, ते जिहड़े ना बिना संकोच तो अड़ जाते ने, उन्हां नूं मौत दा भी डर नहीं गा। ते ओ वड्डियां वड्डियां योधे जिहड़े तेज धार दे अगे भी अड़ जाते ने, उन्होंने सहारना प्रवान कर लेंदे ने। इन्ना आत्म बल, इतना अंदर जोश, इतनी अंदर ताकत बलवानगी। ओ भी तोरत देश मिलंद वासन माटी गजान के मान मलैया। जिहड़े देश देशांतरां नूं तोड़ देंदे ने, एक दूसरे देश दे विच वड़ के देश दे टुकड़े करवा देने, फुट पा देनी। आपां देशां दी भी लै लईए, अपने घर परिवारां च भी ये चलदा है। कईयां दा हिसाब ही आ, किसी दे घर फुट पाओ, एक दूसरे नूं गल इधर दी उधर दसो, नौ नूं सस दी ते सस नूं नौ दी, प्यो नूं पुत्र दी ते पुत्र नूं प्यो दी, ते घरां च वखांत पा देंदे, घर तोड़ देंदे ने। इसे तरह देश देशांतरां नूं भी तोड़न वाले ने बहुत ऐसे बागी लोग दल देंदे ने। सतगुरु कहंदे कई देशां नूं तोड़दे हन, बागियां नूं दल देंदे हन, इत्थे बस नहीं। माते गजान के मान मलैया, उन्हां को मस्त हाथी वर्गा बल, हंकार जिहड़ा मलन वाला है, मस्त हाथी दा हंकार भी मल देंदे ने, हंकार भी तोड़ देंदे ने। ते सतगुरु सच्चे पातशाह अगे बख्शिश करदे गुरमुखो, गाड़ी गड़ान के तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया। इन्ने ने जिहड़े पहाड़ां नूं भी तोड़ देंदे ने, उन्हां दे गड़ी पहाड़ भी कोई वड्डी चीज नहीं। पहाड़ तो मुराद वड्डी तो वड्डी अगे मुकाबला करना शक्ति दे नाल, कि जिवें कि किसी दी शक्ति पहाड़ वर्गी होवे, उन्हां उस शक्ति नूं भी भन्नना है। ते ओह पहाड़ां नूं भी तोड़न वाले जिहड़े, यानी कि आपां जिवें कहंदे ना किसी दा किला सर कर लिया, किला तोड़ दिता, वो बड़े बड़े मजबूत किलियां नूं भी तोड़न वाले, ते जिन्हां दा इह काम जिहड़ा है ना गल्लां बातां दा, इन्नी शक्ति मेहनत करन दी भी इन्नी लोड़ नहीं। यानी कि सहज दे नाल जिहड़ा गल करन तो मुराद गल्लां बातां ना मैं काम कर देना है, कि सहज ना काम हो जाना, ज्यादा अपना जतन करन दी भी लोड़ नहीं। तो वह बातन ही चकचार लवैया, गल्लां बातां दे विच ही वह ये काम झट कर देंदे ने। इत्थे बस नहीं, अखीर दे विच सैब सिरी सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया। हुण सतगुर कहण लगे अपना विचार, सिक्खी दा विचार कहण लगे, गुरमुखो पूरे संसार ते सारियां दा सैब इक्को ही आ। ते जिहड़ी आपां जपजी साहब कल भी जिक्र किया, जदों प्रमाण आउंदा चेते आउंदा, जदों पढ़दे आ 5वीं ते 6वीं पौड़ी दा अखीर दा पदा, सतगुर सच्चे पातशाह हुण मैनूं थोड़ी जी समझ आई आ। जिग्यासू वल्लों बेनती, गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए।
इत्थे भी सतगुर कहने लगे साहब श्री सब को सरनायक, नायक माने आगू कि तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, सानू सेध देने वाले, सानू रस्ता दसन वाले, वो सरनायक है, सरमोर जाचक अनेक। इस दुनिया ते सारी ना ताजहान जाचक है। जाचक कहते मंगता, भिखारी, जाचक अनेक, अनेक ने हम भिखक भिखारी तेरे, तू निजपत है दाता। सतगुर सच्चे पातशाह कहने लगे अनेक मंगते ने ते दाता देण वाला इक्को है। 6 अपने हो गए ने, समा भी हो गया। 4 जेड़े ने वो कल दे दीवान च आपां तुहाडे नाल साझ पावांगे। इतनी बेनती प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुर फतेह दी साझ। आप सब दा धन्नवाद। जी आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की